Hello students, welcome to Shaheen Group of Institutions. Myself Mohammed Zahid and I will be teaching you economics for your upcoming exam, that is CUET. Today's class will be an introductory class. We will discuss about the syllabus, topics, the weightage and which chapter weights how many marks and in how much classes we will be completing each chapter. So first of all, I would like to बताना चाहता हूं आपको कि CUET बेसिकली है क्या, CUET का पैटर्न क्या है। उस पैटर्न को पहले समझते हैं और पैटर्न को समझने के बाद ही हम अपने इंट्रोडक्टरी क्लास जो आज की मेन क्लास है उस पर आते हैं। तो CUET जैसा आप सब जानते हैं, CUET कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो UNTA कंडक्ट कराती है, इसके थ्रू जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर प्राइवेट कॉलेजेस, उनमें एडमिशन UG कोर्सेज एज वेल एज PG कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं आप। जैसे कि 12th के बाद हम लोगों का ये सपना होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अब आगे क्या करना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है। हर कोई चाहता है कि वो अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन ले और अपनी ग्रेजुएशन वहाँ से करे। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, वी आर हियर the Shaheen Group of Institutions for fulfilling your dreams. So today, let's discuss about the CUET exam pattern. For each and every UG courses, there are 3 exams basically. Section 1 is English language courses. Basically, you can select English or other among 13 languages. You can select any one. The second is domain specific subjects. In these, you can select 3 subjects, any subject as per your course. जो आपके कोर्स में है, जिस कोर्स से रिलेटेड है, उसमें आप जो हैं 3 सब्जेक्ट कोई भी चूज कर सकते हैं। एंड फॉर लास्ट पेपर दैट इज योर जर्नल टेस्ट, जिसमें आपका जर्नल एप्टीट्यूड आता है, योर क्वांट आता है, रीजनिंग आती है एंड जर्नल अवेयरनेस आते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो डोमेन सब्जेक्ट्स में जब 3 सब्जेक्ट्स की चूज करने की बात आती है तो आप इकोनॉमिक्स वहां पर कहां पर चूज कर सकते हो। अगर आप BCom के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू कैन सेलेक्ट इकोनॉमिक्स एज योर डोमेन सब्जेक्ट। अगर आप BA इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप वहाँ पर इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर सकते हो। देन फॉर BBA ऑल्सो यू कैन डू इकोनॉमिक्स एज योर डोमेन सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस वी विल बी कवरिंग फॉर UG कोर्सेज इन इकोनॉमिक्स। Basically, economics is divided into 3 subjects mainly. First of all is your microeconomics, if you have already studied in your 12th standard. Then macroeconomics and also an additional subject that is Indian economy, which we study in 11th class. The number of questions in exam will be 50 and we have to attempt only 40 questions there, and the time will be 60 minutes. Okay, so in detail in this class for the introductory part, we will detailedly understand the syllabus, the topics we have to cover in upcoming classes for your economics. So very first, for microeconomics, we can see here that first of all it is divided into 2 units. Unit 1, that is Introduction to Microeconomics, and Unit 2, Consumer Behavior and Demand. For Unit 2, Introduction to Microeconomics, we have to cover the microeconomic concepts only, which we study in 11th class. Some of these are like meaning of economics, what is economics is, what do you mean by economics, why we study economics. We will cover all the topics related to the economics, which is an introductory part. Then basic terms related to economics, basic terms like what is economy, what are economic activities, what is economic system, all these topics which are related to the economic terms, we will conclude that in the upcoming chapters. Then the next one is types of economics. Basically, when we consider the types of economics, we basically consider the 2 types of economics. One is positive economics and the other one is normative economics. We will study in the detailing in the next upcoming classes. So branches of economics, we will talk about microeconomics and macroeconomics because these are not the types of economics, these are the branches of economics. तो ब्रांचेस के मामले की जब हम बात करते हैं, ब्रांचेस की बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब टाइप्स की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एज वेल एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। Then in first unit we have also to cover economic system. Basically there are 3 types of economic system. So we can say economic system होता क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हमें इकोनॉमिक की स्टडी करनी है। तो बेसिकली 3 कैटेगराइज में है, जैसे हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है एंड मिक्स्ड इकोनॉमी है। उनके डिटेल में क्या होता है, क्या डिफरेंसेस हैं, वो सब डिटेल में हम यहाँ पर कवर अप करेंगे।
Then the very important topic is central problems of economy. In as you can see in previous questions, in previous years questions, इस पार्ट से सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी से मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यदि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इन डिटेल में हम इसको कवर अप करेंगे, कौन कौन की प्रॉब्लम्स है जिनसे रिलेटेड हमें इकोनॉमिक स्टडी करनी होती है. And the last one in the unit 1 is PPC, that is propensity possibility curve. ये हम कवर अप करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चले जाएंगे. जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड. इसमें हम डिमांड पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअल डिमांड कवर अप करेंगे. डिमांड के रिलेटेड जितने भी हैं, इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, उन सबको यहाँ पर हम कवर अप करेंगे. कुछ यूनिट्स यहाँ पर गिव रहेंगे लाइक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी अप्रोच, 1 and 2 commodity cases. Then other one is demand, market demand, determinants of demand, demand schedule and demand curve as well. Then the very last in the second unit is price elasticity of demand. We will cover how to calculate price elasticity, what is price elasticity, how many types of price elasticity are there in demand. This is all for your microeconomics. Then come to the macroeconomics basically. In macroeconomics, there are mainly 5 units are there, and among the 5 units macroeconomics का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा है. सबसे ज़्यादा मार्क्स का यहाँ से पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, और जो टॉपिक्स हमको कवर अप करने हैं वो भी यहाँ से ज़्यादा आते हैं. तो हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम कवर अप करना है हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स में. तो यूनिट 1 में अगर आप जैसे देख सकते हैं ऑन योर बोर्ड, ऑन योर स्क्रीन, दैट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें कुछ फेमिलियर टॉपिक्स जो है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमको कवर अप करने हैं. जिनमें से कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहले मीनिंग है कि मीनिंग क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्यों स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, कौन से रिलेटेड एग्रीगेट्स हम यहाँ पर स्टडी करते हैं और कैसे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से डिफरेंट है. तो इसमें हम मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे. देन जो मेन इंपॉर्टेंट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एज वेल एज एट मार्केट प्राइस. हम दोनों मार्केट प्राइस एज वेल एज फैक्टर कॉस्ट पर इसको स्टडी करेंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से मेनली आपका न्यूमेरिकल पोर्शन का क्वेश्चन भी 1-2 पूछे जाते हैं. Come to the next topics under this unit 1 in macroeconomics. We can see measurement of national income. As we all know, we have studied in 12th standard also in economics. नेशनल इनकम को 3 मेथड से कैलकुलेट किया जाता है. फर्स्ट इज इनकम मेथड, नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड. इनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, क्या चीज़ें इनमें एक्सक्लूड की जाती हैं, क्या चीज़ इसमें इंक्लूड की जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इन डिटेल. एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं होने देंगे. आपको ये लगे कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपको नहीं आता हो, तो उससे आप बेफिक्र रहिए. हम टोटली सारे A to Z जितने भी टॉपिक्स रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो हर एक चीज़ बारीकी से आपको यहां पर अपकमिंग क्लासेस में आपको पढ़ाएंगे. देन यूनिट 2 की अगर बात करें, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, विच इज ऑल्सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा नंबर्स भी कवर अप करता है. न्यूमेरिकल्स यहाँ से भी पूछे जाते हैं. तो अगर इसमें हम जो कवर अप करने वाले हैं वो कवर अप करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, देन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट. In spite of this involuntary unemployment, we will all study the types of unemployment in our economy. कौन कौन सी unemployment हैं, जैसे cyclical unemployment, seasonal unemployment, structural unemployment, और कहाँ पर मिलती हैं, कैसे होती हैं, वो सारी इन डिटेल में हम स्टडी करेंगे. उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, 2 सेक्टर मॉडल बेसिकली है आपके सिलेबस में. एज पर योर CUT सिलेबस वहाँ पर सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है, वेयर एज वी ऑल नो देयर आर 4 सेक्टर्स. तो वहाँ पर 4 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ने को होता है, लेकिन आपके सिलेबस में, CUT के सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल ही यहाँ पर गिवन है. तो एज पर द सिलेबस, बिकॉज हमारा टारगेट आपका CUT क्लियर कराना है, तो इसलिए हम ऑन द स्पॉट जो भी आपका है रिलेटेड टू द टॉपिक ही यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जो भी एज पर द सिलेबस है. उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, देन प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड. यहाँ से जर्नल नॉलेज वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जिनमें जर्नल नॉलेज एप्लीकेबल होती है, कॉन्सेप्ट जहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं. तो इस टॉपिक से प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड से आपके एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, लाइक असर्शन और एक्सेप्शन, ये करके इसमें रीजंस वगैरह पर क्वेश्चंस आते हैं.
देन यूनिट 1 में नेक्स्ट है हमारा मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे भी लास्ट ईयर में 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पर देखे गए हैं। फिर कम टू द नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ 2 यूनिट्स है। एज आई से यहाँ पर 5 यूनिट्स में आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिवाइडेड है। अभी सिर्फ 2 इकोनॉमिक्स कंक्लूड हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि मेन पोर्शन जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही आता है एग्जाम में भी, इसलिए वहाँ पर टॉपिक्स भी हमको ज़्यादा कवर अप करने पड़ेंगे। तो डोंट वरी, हम अब नेक्स्ट भी डिसाइड करने वाले हैं कि कौन सी क्लास में किस टॉपिक को, किस यूनिट को कितनी क्लासेस हम अलॉट करने वाले हैं और कितनी क्लासेस में वो कवर अप करने वाले हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 3 है हमारा मनी एंड बैंकिंग, जो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और जिसमें क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। 2 से या 3 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं अगर प्रीवियस क्वेश्चंस के बिहाफ पर यहाँ पर देखा जाए तो मनी एंड बैंकिंग में वी हैव टू कवर व्हाट इज मनी, व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ मनी एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। मनी क्या करती है, मनी का जो एवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी कहाँ से आई, मनी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, वो सब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं। बैंकिंग में हम बेसिकली 2 बैंकिंग सिस्टम्स यहाँ पर पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक्स कौन सी होती हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो मीनिंग क्या है, उनको कब यहाँ पर डेवलप किया गया, कब उनको स्टार्ट किया गया, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स हैं। मेनली कमर्शियल बैंक्स में फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। कितने टाइप्स के आपके कमर्शियल बैंक्स होती हैं, उनका क्या मकसद होता है, क्या उनके बीच में डिफरेंसेस है, ये सब हम इन डिटेल में कवर अप करेंगे। Then come to unit 4, which is government budget and the economy. It is also a very important, इसमें भी न्यूमेरिकल पोर्शन जो है आपका पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है और इस पर एप्लीकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जो आपकी रियल लाइफ में इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आप यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हो, जो एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली। उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट, बजट होता क्या है, बजट का स्ट्रक्चर क्या होता है, बजट के कंपोनेंट्स क्या है, बजट सबसे पहले किसने बनाया, कब बनाया, ये सारी चीज़ें, क्यों बनाया जाता है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, ये सारी चीज़ें हम अपकमिंग क्लासेस में इन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल, बेसिकली रिसीट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर, दोनों 2 कैटेगरीज में डिसाइडेड होते हैं। एक होता है आपका रेवेन्यू एंड एक होता है आपका कैपिटल। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, कौन कौन से सिस्टम को हम यहाँ पर लेते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिशिएंट बजट एंड मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। और यहाँ से आपका जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इनके न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। मेजर्स टू कंटेन डिफरेंट डेफिसिट्स, कैसे इन डेफिसिट्स मीन्स शॉर्टेजेस, यहाँ पर जहाँ पर पॉजिटिव बैलेंस जो है वो आपका कम हो जाए और नेगेटिव आपका ज़्यादा हो जाए। इन अ वेरी कॉमन वे इन जनरल अगर मैं आपको बताऊँ, डेफिसिट का मतलब होता है जहाँ पर आप बजट के हिसाब से खर्चा आपका ज़्यादा हो जाए और आपकी इनकम्स, जो रिसीप्ट्स आपको पैसे इनकम जनरेशन होने वाली थी, वो आपके पास कम आ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आप उसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे कवर अप करोगे, अगर इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो गवर्नमेंट कैसे उसको सॉल्व कर सकती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे लास्ट पोर्शन है आपका वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP में बेसिकली हम स्टडी करते हैं all the transactions when we made to internationally, इंडिया से बाहर, इंडिया जो है एक कंट्री है, एक इकोनॉमी है बेसिकली, ये एक इकोनॉमी कोई भी ट्रांजैक्शन करती है अदर इकोनॉमी से, आउट ऑफ द बाउंड्रीज, कोई भी अदर कंट्री से किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करती है, उस ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे। बेसिकली वी ऑल नो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं दूसरी करेंसी को हम अपनी करेंसी के मामले में कितना वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। सपोज करो अगर आपको $1 परचेज करना है तो $1 परचेज करने के लिए उसका 1 यूनिट आपको कितने रुपीस में पैसे देने पड़ेंगे, उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। उस पर क्या इम्प्लीकेशंस हैं, डिप्रिशिएशन एप्रिशिएशन कब होता है, रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन कब होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कब होता है, पहले क्या था, पेग सिस्टम किसको कहते हैं, इन डिटेल में हम ये स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर है डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे फिक्स किया जाता है, ये भी हम सीखेंगे थ्रू वेरियस कर्व्स एंड एग्जांपल्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करें तो वो कौन सा, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं,
क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे बड़ा पोर्शन जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे भी आपने देखा ऑलमोस्ट जितना भी मैक्रो इकोनॉमिक्स आप 12th में स्टडी करते हो ऑलमोस्ट वो सारे चैप्टर्स यहाँ पर कवर अप हैं, किसी भी एक चैप्टर को नहीं छोड़ा। जैसे एज पर माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर आप देखा जाए ओनली वहाँ पर 2 यूनिट्स आपके गिवन है, एक में आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है एंड द नेक्स्ट में आपका जो है ओनली डिमांड पार्ट गिवन है। वहाँ पर सप्लाई पार्ट, मार्केट पार्ट ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम स्टडी नहीं करेंगे। लेकिन एज पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की पार्ट हम देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो हमको कवर अप करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको स्किप नहीं कर सकते। तो लास्ट वन इज दैट इज इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इन स्टेट बोर्ड्स अगर कंसिडर किया जाए तो इंडियन इकोनॉमी को हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, वेयर एज इन सीबीएसई बोर्ड हम इंडियन इकोनॉमी को जो है वो 12th में पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमें जो कवर अप करने हैं, ऑलमोस्ट इसमें भी ऑलमोस्ट वो सारे चैप्टर्स हैं जो हमें कवर अप करने हैं। थ्योरेटिकल बेस्ड, एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यूनिट 1 में सबसे पहला है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद 1991 तक, अब 1990 तक क्यों फर्स्ट फेज हुआ आपका जिसमें 5 ईयर प्लान्स को ऑर्गेनाइज किया गया, वहाँ पर इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ी, इकोनॉमी कैसे आगे चली, हमारी जो गवर्नमेंट है आज़ादी के बाद हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने इकोनॉमी को कैसे मैनेज किया, क्या क्या चीज़ें आई, किस किस चीज़ पे फोकस किया गया, कैसे इकोनॉमी ग्रो करी, अगर ग्रो कुछ कमियाँ रह गई तो वो क्या कमियाँ थी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में हमने लिया था, आपको मालूम है, जैसे कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो 1991 में लिए गए थे, उसके क्या कारण थे, क्या कंडीशंस थी, क्या वो हमने वॉलेंटरी लिया था या उसमें कोई हमारे पास कुछ और ऑप्शन ही नहीं था, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन इकोनॉमी ने उसको क्यों एक्सेप्ट किया, वो सारी चीज़ें इन डिटेल में हम देखने वाले हैं। उसमें क्या हुआ, बेसिकली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो लिबरलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लिबरलाइजेशन ही एकमात्र ऐसा आपका वहां पर रिफॉर्म है जिसमें सारे रिफॉर्म्स को हम प्रैक्टिकली स्टडी करते हैं जो एक्चुअली में हुए थे। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक देन, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज जो एग्रीकल्चर लेवल पर वहाँ पर देखने को मिली थी। एज वी नो एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ इंडिपेंडेंस वहाँ पर मोस्ट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में एंगेज थी, एग्रीकल्चर से ही वहाँ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता था। तो उस एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए, क्या क्या कमियाँ थी, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने यानी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लॉन्च करी, वो सारे हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हम IPR 1956 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन इंडस्ट्रीज, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे वहाँ पर कि इन्होंने कैसे अट्रैक्ट किया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, वो सारी चीज़ें हम इन डिटेल में स्टडी करेंगे। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हम वो स्टडी करने वाले हैं जो चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, वो चैलेंजेस जो अभी भी इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है। जैसे इसमें आपका पॉवर्टी है, ऑब्वियसली पॉवर्टी अगर आप देखा जाए आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉवर्टी तब भी थी, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए, बहुत सारे एलिवेशन प्रोग्राम्स चलाए, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गवर्नमेंट ने, लाइक मनरेगा, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, पॉवर्टी बेसिक एम्यूनिटीज़ रिलेटेड, बहुत सारे यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किए स्कीम्स। लेकिन आप जैसे कि आप अपने चारों ओर देख सकते हैं अभी भी इंडिया में पॉवर्टी जो है उसको ख़त्म नहीं करते गए हैं, अभी भी पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। वो क्यों करती है, क्यों गवर्नमेंट फेलियर हो चुकी है, वो सब हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या स्टेजेस हैं, कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, क्या मीनिंग है, क्या होता है ह्यूमन कैपिटल, सोर्सेस क्या हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, वो सारा हम इन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी पार्ट हमने, एवरी चैप्टर जो है आपके इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पर कवर अप किया है। एंड द वेरी लास्ट यूनिट जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये तीनों कॉलोनीज, ये तीनों इकोनॉमीज जो थी वो इंडिपेंडेंट, वो ब्रिटिशर्स के अधीन थी, यानी उनके गुलाम थे, और उनसे इन तीनों इकोनॉमीज ने अपने इंडिपेंडेंस लिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चाइना इकोनॉमी में आप देख सकते हो कंपैरिजन के तौर पर चाइना हमसे बहुत आगे चला गया और पाकिस्तान हमसे पीछे रह गया।
तो ऐसा क्यों, हम चाइना से क्यों पीछे रह गए और हम पाकिस्तान से आगे कैसे आ गए, ये सारी चीज़ें डिटेल में, ऐसे क्या पॉलिसी थी, हमने क्या अप्रोचेस अपनाए, गवर्नमेंट ने ऐसे क्या किया, कौन से सेक्टर में हमने जंप किया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज़ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट। तो अगर बात करें तो ये आपका सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है। इस कंप्लीट सिलेबस को हम डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करने वाले हैं। उस क्लासेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करने से पहले ये देख लेते हैं यूनिट वाइज कौन से यूनिट का वेटेज प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कौन से यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो वेटेज पर यूनिट के हिसाब से देखा जाए आपका, तो वेटेज पर यूनिट में माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट में जो हमने देखा कि 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है, एक आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है और एक आपका डिमांड है। तो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस ओनली दो आए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के बेसिस पर अगर देखा जाए तो, और यूनिट 2 जो आपका डिमांड पर्सपेक्टिव है वहां से भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ये पक्का नहीं है कि ये सेम पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन स्टिल इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से देख करके कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा रिलेटेड है, कौन से टॉपिक से हमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक्स पर हमें ज़्यादा फोकस रहना है। ऐसा नहीं है हम सारे टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं इधर, ऐसा नहीं है कि किसी भी टॉपिक को उसके वेटेज के अकॉर्डिंग हम उसको कम फोकस करेंगे। आपको इन डिटेल में सारे टॉपिक्स एज पर रिलेटेड टू द CUET सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, उससे आप बेफिक्र रहिए। हम एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये कोई डिसाइडेड नहीं है NTA के द्वारा कि वो किस टॉपिक से ज़्यादा आएगा। ये सिर्फ एक अजम्पशन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है कि कौन से टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट यूनिट की बात करें तो उसमें 2 क्वेश्चन जो है आपके नॉलेज बेस्ड हैं, एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का आया है, तो टोटल क्वेश्चंस वहां पर 3 आए हैं। यूनिट 2 में अगर हम बात करें, जो आपका यूनिट 2 है वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट पार्ट है, जहां पर हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस 5 हैं, आपके एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एप्लीकेबल जो क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन जो क्वेश्चंस हैं वो 3 हैं, और न्यूमेरिकल वहां से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो टोटल क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस वहां पर पूछे गए हैं, जो बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है। ऑलमोस्ट 25% क्वेश्चन जो है एक ही यूनिट से आपके लिए पूछ लें, क्योंकि 40 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट देयर एंड ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आर फ्रॉम देयर। ओके, देन यूनिट 3 में 4 क्वेश्चंस जो नॉलेज बेस्ड हैं आपके, देन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 2 हैं आपके जो बजट रिलेटेड है, वहां पर टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और यूनिट 4 में आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड यूनिट 5 में आपके 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 4 जो आपके नॉलेज बेस्ड हैं, 3 जो आपके आपके न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। अगर टोटल काउंट किया जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, तो कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं? 10, 3, 10, 13, 13, 6, 19, 19 and 2, 21, 7, 28. 28 क्वेश्चंस फ्रॉम 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं? ओनली फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, द मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका वहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक हमने कवर अप किया है। द लास्ट टॉपिक हम यहाँ पर आ जाए, इंडियन इकोनॉमी की बात करें। नाउ नंबर ऑफ क्लासेस, रेस्ट जो भी क्वेश्चंस हैं आपके वो इंडियन इकोनॉमी से कम ही पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज जो हैं वो ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। लाइक टोटल क्वेश्चंस आपके 50 होते हैं, और 50 में से आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। कोई भी वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो सेक्शन वाइज पेपर नहीं होता है। नॉर्मली आपको 50 क्वेश्चंस देवन होते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है, और आपको वहाँ पर कोई भी 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी 10 क्वेश्चन हमारे लिए वहाँ पर ऑप्शनल होते हैं। ओके, नाउ कम टू द क्लासेस। अपकमिंग क्लासेस में नंबर ऑफ क्लासेस के लिए अगर बात की जाए तो कितनी क्लासेस को हमें कवर अप करना है, यानी एक टॉपिक के रिलेटेड कितनी क्लासेस हमको लगने वाली हैं। अगर इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका यूनिट 1 में आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, अगर उसमें देखा जाए तो 2 क्लासेस में उसको हम कवर अप करेंगे। पहली क्लास में आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमी के रिलेटेड इशूज, माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, वो सारा वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट क्लास में हम आपका PPC यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है हम वहाँ पर आपका डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट आपका देखा जाए कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, जो आपका उसमें 5 क्लासेस लगने वाली हैं। डिफरेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग, डिफरेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग वेटेज देते हुए उस यूनिट को हम 5 क्लासेस में कवर अप करेंगे,
क्योंकि डिटेल में पढ़ना भी जरूरी है रिलेटेड टू द जनरल नॉलेज ऑल्सो, क्योंकि इस पर्सपेक्टिव और नॉट ओनली द कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस आप कैसे उसको क्वेश्चंस फ्रेम कैसे करना है, और साथ ही साथ में हर एक क्लास के बाद हम फ्यू क्वेश्चंस क्वेरीज भी करेंगे जिसका डिस्कशन हम प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद नेशनल एंड इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की बात की जाए तो हम 7 क्लासेस में इसको कवर अप करेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी है कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ, तो कम से कम 7 क्लासेस इसमें लगेंगी। जितनी कम क्लासेस में हम इसको कवर अप कर सकते हैं उतना मैंने यहाँ पर डिसाइड किया गया है। स्टिल अगर कोई एडिशनल टॉपिक ऐसा रहेगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर सिलेबस से पार्ट जो हम रह जाता है वो हम एडिशनल क्लासेस में भी डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें हम डाउट क्लासेस वहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहाँ पर 10 क्लासेस हमको लगने वाली हैं, बिकॉज वहाँ पर टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं और टॉपिक्स के साथ साथ वहाँ पर जो है आपका कंटेंट भी बहुत ही ज़्यादा है। इंपॉर्टेंस के देखा जाए तो वहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमको वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने उसको 10 क्लासेस दी हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा क्लासेस जो हैं आपकी ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट इसी यूनिट में लगने वाली हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, मनी एंड बैंकिंग। ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, कम क्वेश्चंस भी यहाँ से ओनली 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 3 टॉपिक्स में यहाँ पर डिसाइड करने वाले हैं। मनी के बारे में पढ़ने वाले हैं, देन बैंकिंग सिस्टम में हम कमर्शियल बैंक्स और आरबीआई पढ़ने वाले हैं, तो सब में एक एक क्लास हम कंसिडर करेंगे विद क्वेश्चंस ऑल्सो। तो यहाँ पर इसलिए मैंने 3 क्लासेस में इस टॉपिक को हम कवर अप करेंगे। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें हम इसको 6 क्लासेस में कवर अप करेंगे और 6 क्लासेस में साथ साथ इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, जो आपको नेक्स्ट को आपके प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको वो क्या है क्वेश्चंस कवर अप करना पड़ेगा। हम आपको एक क्लास में हर एक टॉपिक के बाद टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में कुछ क्वेरीज आपसे करेंगे, उसके आंसर्स प्रोवाइड नहीं की जाएंगी आपको, वो आपको खुद आंसर करना पड़ेगा। एंड द वेरी नेक्स्ट क्लास उस सेम चैप्टर के अकॉर्डिंग जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो सबसे पहले हम वो आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके उसके बाद आपका है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में 6 क्लासेस हमको लगने वाली हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में भी हमको 6 क्लासेस लगने वाली हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स को हम इन डिटेल में विथ न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए देखना है। Then the next one is डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो आपका इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, उसमें हमको 5 क्लासेस लगने वाली हैं। देन करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर्स आपके आते हैं, सबसे ज़्यादा चैप्टर्स इसी पोर्शन में आपके गिवन है, तो इसलिए इस चैप्टर में इस पार्ट को इस यूनिट को हम 9 क्लासेस में कवर अप करेंगे। Now very last, development experience of India, where a comparison has to be done between China and Pakistan. यहाँ पर हम इसको 4 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो एज पर द सिलेबस हम टोटल इनको लाइक 4, 9, 13, 5, 18, 6, 24, 30, 33, 43, 50, 57 ऑलमोस्ट 60 क्लासेस के अप्रॉक्स हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे हमारे, जहां पर ओनली आई विल गिव यू द क्वेश्चंस आल्सो ऑनलाइन एंड यू हैव टू आंसर इट। सिर्फ क्वेरी क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर सेक्शन भी होगा, वहां पर हम जो है अपना सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फॉर टुडेज क्लास विच इज़ एन इंट्रोडक्टरी क्लास, आई होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि क्या हमने पढ़ना है, किस क्लास में क्या हमको करना है, कैसे करना है, कौन से टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं, कौन से टॉपिक्स में हमें सबसे फोकस्ड रखना है। तो इन द वेरी नेक्स्ट क्लास जो है हम इन अपना सिलेबस जो है स्टार्टिंग करेंगे अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स से, बेसिकली विच इज़ इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, वहाँ से हम पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।